Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is PHP. So let us start our seventh chapter. Okay, that is MySQL database overview. In today's lecture we will going to see introduction, PHP my admin overview. Okay, in next part we will going to continue using a MySQL database, reading and writing data. So let us see a brief introduction. Nowadays, dynamic website require a database as a backend. You all know, okay? The purpose of a database is to store information securely provided by the user. Okay, whatever the user information is provided by the user itself, we will going to just keep it for a secure, as we have just completed our session. Okay, we have completed session and client. Okay, we can use that scripting languages also. It allow you to operate on data, like we can display it onto the browser, update the stored information or delete it. MySQL is the most popular database of use in websites. It was developed to be the fast and small, especially for website. Okay, MySQL is popular with PHP, they both together works well. It is a relationship between database management system. MySQL server can manage many databases at the same time. Data in database is stored in the form of tables. You must first create table before creating tables. Okay, सबसे पहले हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. क्यों? ताकि हम टेबल्स क्रिएट कर सके. अब यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट के लिए जब भी हम रन टाइम पे यूजर से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहीं ना कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी. तो हम लोग हमारा डेटाबेस जो है माई एसक्यूएल में क्रिएट करेंगे. माई एसक्यूएल और प्लस पीएचपी का कॉम्बिनेशन बहुत ही पुराना है और ये मोस्टली बहुत बार यूज किया गया है सभी कोडिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि ये इजी है. एट ए टाइम बहुत सारे डेटाबेस के साथ वर्क कर सकते हैं हम. ठीक है, नाउ लेट अस सी PHP My Admin Overview. Okay, it is a free open source web application. It provides graphical user interface for working with MySQL database. It is very popular SQL administration tool. We can use this tool with any operating system very easily, like Windows, Linux and other operating system. It can import and export database created and managed by SQL MySQL databases. ओके, अब यहाँ पे हम माई PHP या PHP माई एडमिन जो है, हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो. ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बताया. ये ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है माई एसक्यूएल और प्लस PHP के अंदर कोडिंग करते टाइम. सम बेसिक ऑपरेशन विद PHP. ठीक है, अभी हम ये बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे PHP के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप सबको पता होने चाहिए. सो लेट अस सी. You can create or you can access to PHP My Admin on localhost. Okay, for that purpose you need to enter URL http colon double backslash localhost single backslash php my admin. After entering username and password, click on Go button. It will display home screen of PHP My Admin. ओके, जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, वेलकम टू PHP My Admin. अगर आपको ये चेक करना है तो आप इजीली चेक कर सकते हो. क्या करोगे आप? URL डालोगे और URL डालने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है. नेक्स्ट, क्रिएटिंग डेटाबेस इन PHP माई एडमिन. तो अभी हम यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे अभी. क्लिक ऑन न्यू आइकॉन इन लेफ्ट पैनल. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू आइकॉन, यहाँ पे क्लिक करना है. यू कैन सी डेटाबेसेस टैब इन राइट पैनल इन डेटाबेसेस. ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो बहुत सारे डेटाबेसेस प्रेजेंट है. टोटल 5 डेटाबेसेस प्रेजेंट है. इन डेटाबेसेस यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द डेटाबेसेस. आपको डेटाबेस का नेम पहले देना पड़ेगा.
After providing a name of the created button, it will create the database. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है. क्लिक करने के बाद डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट का नेम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं उसे डेटाबेस को नेम दे दूंगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मेरा डेटाबेस का नेम होगा बुक्स, सेकेंड ईयर बुक्स, थर्ड ईयर बुक्स, बीबीएससी डिपार्टमेंट बुक्स, BSc CS, BCom, MBA, ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट वन, ड्रॉपिंग डेटाबेस. ड्रॉपिंग डेटाबेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिमूव करना है हमें पर्टिकुलर डेटाबेस को. If you want to drop a database, you need to click on database in left panel, click on operation tab and find option remove database. If you click on drop the database, will drop the current database, but be aware about it because it will drop all the tables also present in the database. ठीक है. अगर आपको कोई भी एक डेटाबेस डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग क्लिक कर सकते हो लेफ्ट क्लिक पैनल पे और वहाँ पे आपको ऑपरेशन करके एक टैब दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. आपको देखना है रिमूव डेटाबेस का बटन और आप जब उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस आपका ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन जब भी आप डेटाबेस ड्रॉप करोगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डिलीट हो जाएंगी. नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग टेबल इन PHP माई डेटाबेस. ओके, अभी हम देखेंगे हम यहाँ पे क्रिएट टेबल कैसे करें. ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था न्यू, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट टेबल. दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट टेबल. You can see in the structure tab you have got an option to create a table. You can create a new table provided a number of columns. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नेम्स भी दे सकते हैं. एंड क्लिक ऑन गो बटन वंस you clicked it table with created database test. In our case we have provided table employee. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने एम्प्लॉय का डेटाबेस क्रिएट किया है. ठीक है, एम्प्लॉय नाम का एक इन्होंने डेटाबेस क्रिएट किया है. सो लेट अस सी. अब यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको. ठीक है, ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है. इंसर्ट फील्ड और कॉलम इन टेबल. We have to provide column details like name of column. It should be unique. Date of column such as int for integer, for number, character for varchar, or text for, we can say, character value. Date for entering date value. Length field allowed to provide maximum length of character of column it can accept. ठीक है, लेंथ फील्ड क्या करेगा, मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी एक्सेप्ट करनी है वो डिफाइन करेगा. null type indicates whether column will accept null value or not. null type आपको वहां पे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कॉलम null की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं. default value is if we will set that it will automatically accept default value. अगर हमने default value accept करने के लिए रखी, by default अगर यूजर ने नहीं डाला, सभी जगह पे वहां पे आपको पूना डालना है, तो वो ऑटोमेटिकली पूना ले लेगा. when we create all these details, table structure will be created. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे सभी, यहाँ पे देखो नेम है, टाइप है, लेंथ वैल्यू दिया हुआ है, डिफॉल्ट दिया हुआ है. ठीक है. अभी यहाँ पे कैरेक्टर के लिए दिया है, यहाँ पे नल के लिए दिया है. ऐसे n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होती है. हमें सिर्फ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन चूज करनी होती है. एक बार हम लोगों ने इंफॉर्मेशन चूज कर ली तो हमें इंफॉर्मेशन चूज होने के बाद डेटाबेस दिखेगा. नेम, टाइप, लेंथ, वैल्यू, डिफॉल्ट, कलेक्शन, एट्रीब्यूट्स और नल, ऐसे ये डिवाइड होता है. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू, आफ्टर एंटरिंग ऑल फील्ड टेबल स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड. एक बार हम लोगों ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी तो यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टाइप. ठीक है. यहाँ पे नल वैल्यू नो नो नो, डिफॉल्ट वैल्यू हमने नन रखी है. नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज इन PHP माई एडमिन. SQL tab is used where we can write queries and test them. In our case
वी हैव इंसर्टेड एनी रिकॉर्ड इनटू एम्प्लॉय टेबल। ओके, अगर हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट किया है तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। बट वी कैन डिस्क्राइब टेबल स्ट्रक्चर in form of DESC command. Let's have a look. ओके, अगर मुझे डिस्क्रिप्शन देखना है मेरे टेबल का तो मैं वहाँ पे DES ये कमांड फॉलो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वहाँ पे डाला है DESC एम्प्लॉय तो ऑटोमेटिकली मेरा एम्प्लॉय टेबल ओपन होगा। After inserting field or column, now we have to enter record into the table employee. Okay, अभी अगर आपको एम्प्लॉय टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो वहां पे हम कैसे इंसर्ट करेंगे? वी हैव टू क्लिक ऑन टेबल एम्प्लॉय एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। ओके, हमें टेबल एम्प्लॉय पे क्लिक करना है और इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। वी हैव टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर रिस्पेक्टिव कॉलम। अभी हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी कॉलम्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाली स्क्रीन देखो, दिख रहा है? यहाँ पे लिख के आ रहा है एम्प्लॉय नंबर डाल दो इंट में, एम्प्लॉय नेम डाल दो वैरकैट 20 में, डिपार्टमेंट डाल दो वैरकैट 20 में, और यहाँ पे देखो वैल्यूज क्रिएट नल वैल्यू। अगर किसी ने कुछ नहीं डाला तो ये ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। After clicking on go button, records will be inserted into the table employee. Now to see record of the table, we will write SQL query and we can display record. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को व्यू करना है तो हम SQL क्वेरी लिख सकते हैं शो क्वेरी बॉक्स करके, तो आपको डायरेक्टली दिखेगी यहाँ पे टेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन, we can manually write queries in SQL tab. For example, we want to insert records using insert query into the table. When you will click on go button, a record will be inserted. Okay, अगर आपको क्वेरी SQL की क्वेरी की तरह लिखना है, insert into employee values ऐसे लिखना है तो आप वैसे भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको टेबल फॉर्मेट में इंसर्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। Now the next one, importing data. Now what do you mean by importing data? Importing data means already database present है, already we have created a database, only we have to import that particular database. So first we will going to write over a you can create a database and easily import it using PHP MyAdmin. Okay, अगर आपने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट करके रखा है तो हम वो इंपोर्ट करेंगे बाय यूजिंग PHP MyAdmin. First, you have to create a database in PHP MyAdmin or you can select existing database. अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको वो डेटाबेस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यू कैन क्रिएट दैट. Creating and importing table, you can create tables that you have filled with new data or you can import existing data table. Okay, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो एग्जिस्टिंग करना है, नहीं है क्रिएटेड तो आपको पहले डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा सभी फील्ड्स के अंदर और फिर आपको वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा. क्रिएट एक्सेल फाइल, एंटर ऑल फील्ड नेम्स आर स्टोर्ड रिकॉर्ड इनटू इट. सेव द फाइल विद .csv एक्सटेंशन. अगर आप लोगों को एक्सेल शीट में फाइल क्रिएट करनी है डेटाबेस की तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको .csv ये एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी. क्लिक ऑन इंपोर्ट टैब, सिलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ब्राउजर बटन. Select the name of the file with .csv extension. After it, click on go button. Your file will be imported as a table into your database. If you want to rename a table, go to Operation tab and select tab options and select tab option. There you can rename the table. Okay, अगर आप लोगों को रीनेम करना है तो वहाँ पे ऑप्शन टैब प्रेजेंट है, वो ऑप्शन टैब में आप लोगों को क्लिक करना है और रीनेम करना है पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर टेबल को. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. We will going to continue, okay, our 7th chapter part 2.